In this session, we will discuss one more sample paper. That is a sample paper also, and this is also previous year question, last year question paper for basic part of All India CBSE. Last paper that we will discuss that was from the Delhi region, and this is the from Delhi region as well as from outside of the Delhi region. So this is very important paper, and by solution of this paper, you will get exact idea which kind of question can ask in the examination. In last time, I also explained the pattern of the paper that you will get 3 hours for 80 marks, and in question paper, total 38 question will be given that divide in the 5 sections. कितने में divide होगा? 5 sections. Question 1 to 18, that is the section A, content of the 18 marks MCQ questions and SRS and region questions. Section B, that is 21 to 25 number question, that is very short and it is 2 marks questions, and section C, that is short type and 3 marks, 26 to 31. 30 to 35, that these questions are 5 marks long answer questions, and next part, that is E part, that is case study based question. But you know, in case study based question, you will also not get MCQ part. You have to give answer. Okay. And in case study, you will also get a one choice. One question you will get as a choice in case study part. So total 5 section, 80 marks, 3 hours. We will start with the very first question. Everywhere you have to take the value pi equal to 22/7. So calculation become very easy. And one very important concept in the board examination, you know, in board examination question is asked. Such a calculation is very easy. If you attempt in a proper way, then board examiner not ask hard calculation questions. Calculation will be such that you can solve that calculation very easily if you use proper method and proper approach. If you will use wrong approach, that means calculation become hard. But you apply the proper value, proper calculation, then calculation part is very, very easy. There is no long calculation. That I think you also feel in first solution that we done in last lecture, and you will also see in this as well. So we will start with the very first question for today's class. This is the very first question. You know, the time in second taken by 150 athlete to run 100-meter hurdle race are tabulated below. The number of athletes who completed the race in less than 17 second. Less than 17 second में कितने athlete cover कर रहे हैं? Just you have to find the CF. It is the application of the cumulative frequency for the median. जिससे हम लोग पूरी CF निकालते हैं ना, लेस देन मोर देन कंसेप्ट जो होता है. तो यहाँ पे देखो लेस देन 17 सेकेंड तक का ये वाला पार्ट है. दिस इज द पार्ट दैट इज फॉर द लेस देन 17 सेकेंड. यहाँ पे टाइम दे रखा है ना, किसी को 13 to 14 सेकेंड लगा, 14 to 15 सेकेंड लगा, 15 to 16, 16 to 17. अब ये 17 इंक्लूड करना है क्योंकि ये जो क्लास है दैट इज जस्ट लेस देन 17. ये किसको रिप्रेजेंट करती है? लेस देन 17 को रिप्रेजेंट करती है. लेस देन 17 को रिप्रेजेंट करती है. ये वाली जो क्लास हो रही होती है ना, ये जस्ट 17 के प्लस स्टार्ट होती है. 17 से पहले पहले ये वाली क्लास है. इसके अंदर आप देखोगे नंबर ऑफ एथलीट 13 to 14 2 है, 14 to 15 4 है, 15 to 16 5 है, और दिस इज 71. टोटल मिला के, ये केवल ये मत ले लेना. कई लोग क्या करते हैं, गलती में 71 दे देते हैं. ऑप्शन में दिखता है ना कि 17 वाला दिख जाता है, पर ऐसा नहीं है. लेस देन 17 का मतलब 17 से पहले पहले के सारे एथलीट आपको काउंट करने हैं. तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा. 71 + 5 + 4 + 2. So that is equal to 71 + 11, that is equal to 82. And you have the answer, that is 82 in your answer. समझ में आ गई बात कैसे करना है इस क्वेश्चन को? छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है क्योंकि लेस देन 17 में सोचते हैं आप सीधा 17 वाला कॉलम देख के ऐसा मत कर देना कि सीधा 71 आंसर दे दो. 71 दे भी रखा, देखो एस बी से सी से पहले दे रखा ये. और कई लोग क्या गलती करते हैं, ये 17 वाला कॉलम लेते ही नहीं है कि लेस देन 17 मतलब इसके पहले वाले. तो ये 5 + 4 9 और 2 11. 11 सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है क्योंकि बच्चा सबसे पहले कहां जाता है? 11 के ऊपर जाएगा. वो ये वाला कॉलम भी छोड़ देगा कि इससे पहले पहले पूछा है ना सर, इससे पहले पहले पूछा, पर इससे पहले पहले नहीं बेटा, ये भी तो क्या करना पड़ेगा? 16 to 17 भी तो इसी में आता है, तो लेस देन 17 में ये भी तो आएगा. तो इसलिए देखो, पहला गलती 11 देखते बच्चा करता है, इसलिए उसने पहला ऑप्शन भी दिया. दूसरी गलती क्या करता है बच्चा, ये देखेगा केवल 17 वाला कॉलम. बच्चा सोचता कम है ना. अब उसने तीसरा ऑप्शन जाके 82 दिया जो सही ऑप्शन है. ठीक है, तो ये एग्जामिनर की कला होती है कि कैसे गलत करवाना क्वेश्चन को, कैसे गलत करवाना है. ठीक है, थोड़ा सा भी आप ध्यान से नहीं पढ़ो क्वेश्चन, आते हुए भी गलत.
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,0 फ्रॉम द ओरिजिन। देखो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा। 0,0 ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 और 5,0 के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा बेटा। तो बताओ क्या होगा? ये लगाने की जरूरत है क्या? मेरे को बताओ, ये लगाने की जरूरत है? पर इसमें बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं? 5 के ऊपर रूट लगा देते हैं, पर ये नहीं पता 5 का स्क्वायर है तो कितनी होगी यूनिट। गलती करते हैं ना इसमें, क्या कर देते हैं? 5 रूट में लिख देते हैं, ये नहीं सोचते कि क्या होगा। ठीक है क्या? 5 और लिख देते हैं √5, या √5 से क्या कर देंगे? इसके ऊपर स्क्वायर के चक्कर में स्क्वायर कर देते हैं और उल्टा। देखो बड़े बड़े होशियार होते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन में देखो, जैसे आप होशियार हो वैसे ही आपके ऑप्शन मिलते हैं। जितने आप होशियार हो उतने क्या मिलता है आपको? ऑप्शन उतने होशियार मिलते हैं, ताकि आपके गलती करने के चांस 100% रहे। ये आपको ध्यान देना होता है। किस किसी गलत हुआ? सबका गलत हुआ। देखो सोचिए आप, सोचिए आप, ये आपके कंसंट्रेशन लेवल का चेकिंग है। एक्चुअली ये क्या है? कंसंट्रेशन लेवल का चेकिंग है कि कितनी आपका कंसंट्रेशन लेवल वो खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल्ड राइट एंगल एट सी, tan A इक्वल टू 8/C7, देन वैल्यू ऑफ द कॉट बी। कॉट बी की वैल्यू क्या होगी? कॉट बी की वैल्यू क्या होगी बताओ? सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो ऐसा देख लो, ये दे रखा tan A, tan A इक्वल टू क्या होगा? 8/7। तो ये किसके इक्वल है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। हमारे पास कोट ए पूछा, कोट बी पूछा है। कोट बी, कोट बी की वैल्यू क्या होगी? बी के लिए ये वाला बन गया, तो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा बताओ? आपके पास ये वाला बनेगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या आएगा? BC अपॉन AC। तो ये भी वैल्यू क्या बनेगी? किस किस का था ये सही? ये भी सेम का सेम आएगा, 8/7 आया। क्यों बेटा? इस पढ़ लिया, अच्छी बात है, और पढ़ते जाओ, और पढ़ते जाओ। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट मतलब समझते हो? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्वाड्रेंट मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अप्लाई द एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होगा थीटा कितना है? 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7। अब देखो कैलकुलेशन करने वाला कितना आसान करके देता है आपको। ये हुआ, ठीक है, ये हो गया कैंसिल, ये 4 2, ये कितना हो गया? 11 7 जा 77/2। कहीं भी आपसे कैलकुलेशन करा रहा है क्या? बताओ मुझे, करा रहा है क्या? ठीक है इजी। सारे क्वेश्चन देखो बहुत इजी इजी से हैं, मजा आ रहा है। HCF ऑफ दिस वन, LCM ऑफ दिस इज। HCF दे रखा है, LCM क्या होगा? तो सीधा है भाई, LCM फाइंड करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो HCF कितना है? 24 इंटू LCM इक्वल टू 72 इंटू 120। 24 1 जा 24, 24 3 जा, तो कितना आ गया? LCM 360। कितना आ गया बताओ? हार्ड है क्या क्वेश्चन? ठीक है 360। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सपल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। एक कार्ड आपने निकाला रैंडमली वेल सपल 52 कार्ड में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक किंग? ब्लैक किंग होने के, ब्लैक किंग दो होते हैं, कितने होते हैं? एक तो आपका पता है हुक्म का किंग, और एक चिड़िया का किंग। क्लब और स्पेड हो गया। उन दोनों के किंग कैसे होते हैं? काले होते हैं। किंग कैसे होते हैं उनके? काले होते हैं, जाम्बिया के, अफ्रीका वाले। ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा? कितना होगा? प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल किंग कितना है? 2/52। आंसर कितना आएगा?
ठीक है, नेक्स्ट, द ग्राफ y इक्वल टू एपेक्स शॉन द फिगर इन द सम पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज करने के लिए एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, और ये ग्राफ बोल रहा है मेरे को एक्स एक्सिस से कोई बढ़ती नहीं है, इनका रिश्ता बड़ा खतरनाक वाला है, तो ये दूर भागता है एक्स एक्सिस से, इसका मतलब इसके जीरोज भी क्या है, जीरो, तो जीरो को जीरो, कोई सॉल्यूशन इसके पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, कट करता तो कुछ मिलता, बिना कट के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। The value of the k if 6 k lies on the line represented by x minus 3y, सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई कराएंगे, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे x की वैल्यू 6 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 12 इक्वल टू 3k हो गया, तो k इक्वल टू कितना है बच्चे लोगों, ऑप्शन क्या है, क्या है जी, समझ में आ गई बात, शांति मतलब शांति, शांति रखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कितने मस्त मस्त क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर क्या होगा, 2304, अगर नहीं आता है ना छोटे बच्चे बन जाओ, 2 से कट किया कितना आया 1 6 5 2, 2 से कट कर लो कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा 2 6, 2 से और कट कर लो कितना आएगा 4 2 4 1 और 3, फिर 4 1 3 आएगा ना, है 1 4 1 2 कैसे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, हाँ यहाँ 1 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ आना आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, देखो ये कितना हुआ 5 और 7 और फिर कितना आएगा 2 8, फिर 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 18, फिर फिर तो 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3 की पावर 2, है ऑप्शन कौन सा, ए, ठीक है, समझ में आई बात, ये तुम्हारा ही पेपर है लास्ट ईयर बेटा, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, हाँ लास्ट 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 ये थे ना इनका है, ठीक है। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 8 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट, 8 की पावर किसी डिजिट नहीं हो सकता, क्योंकि 8 की पावर 1 करके देख लो क्या आता है 8, 8 की पावर 2 करके देख लो कितना आता है 64, 8 की पावर 3 करके देखोगे आएगा लास्ट में 2 आएगा डिजिट, क्या आएगा 2, 8 की पावर 4 करके देखोगे लास्ट में डिजिट आएगा 6, फिर 8 की पावर वापस 5 करोगे तो वापस आ जाएगा 8, तो इसका मतलब ये साइक्लिसिटी चलती है 8 4 2 6, कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जीरो कभी भी नहीं आ सकता, जीरो पॉसिबल नहीं है, तो जीरो को टिक कर दो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर कौन से हैं पहले ये पता होना चाहिए, पहला प्राइम नंबर कौन सा है 2, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये सुन लेना, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ये आपके कितने हो गए 7 प्राइम नंबर, इनका मिडिल डेटा कौन सा है, तो मीडियन क्या हुआ, इसमें लोग गलती करते हैं क्या 1 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते आ जाता 5, 5 होते नंबर होता 0, कितना आता है 0, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, if 2, 4 is the midpoint of the line segment joining 6, 3 and a, 5 the value of the a, बताओ 2 दे रखा है, किसका मिड पॉइंट है 6 प्लस a अपॉन 2, तो a इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस 6 माइनस का 2, माइनस का 2, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द k
value of the k for which the system of the equation kx plus 2y equal to 5 and 3x plus 4y have no solution. No solution का मतलब क्या हो गया? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. कोई सॉल्यूशन नहीं है. a1 कितना उसमें k. अरे हाँ हाँ, नॉट इक्वल टू नहीं होता. नो सॉल्यूशन क्या होता है? इक्वल टू होता है. b1 बाई b2. ये सब तो बाकी सो रहे हैं इनमें. k अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. k इक्वल टू 3/2. कितना आएगा? 3/2. k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2. नेक्स्ट, in the given figure, PQ and PR are tangent drawn from P to the circle with center O, such that angle QPR equal to 65. Then measure of the OQR. ये तो सीधा यार, इन दोनों का सम QPR प्लस QOR इक्वल टू 180. तो QOR कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100, सॉरी 65, तो 115 आएगा. कितना आएगा? दे रखा है. देखो कितने इजी एमसीक्यू है सारे के सारे. क्वेश्चन नंबर 15. द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 16x स्क्वायर माइनस 9. तो 16x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 कर दो. तो इसको क्या लिख सकते हो? या चाहो तो ऐसे लिख दो 16x स्क्वायर इक्वल टू 9. तो x स्क्वायर इक्वल टू 9/16. x इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3/4. तो प्लस का 3/4 माइनस का 3/4. बी ऑप्शन. क्या होगा? बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. -5x and 3 are three consecutive term of AP, then the value of x. जब 3 टर्म AP में होती है, if ABC in AP, ABC in AP, तो हमें पता है कि 2B इक्वल टू A प्लस C होता है. तो 2x इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 5 प्लस का 3. तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1. x इक्वल टू माइनस का 1. समझ में आ गई बात? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? An unbiased dice is throw. The probability of getting an odd prime number. यहाँ पे ये 16 नहीं है, 1/6, 1/2, 2/3 एंड 1/3 है. ओड प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? ओड प्राइम नंबर क्या बोला है? गेटिंग ओड प्राइम 3 है और 5 है. तो 2 अपॉन टोटल कितना होंगे? 6. तो 1/3. ऑप्शन कौन सा है? डी. कौन सा है? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मीन ऑफ डेटा. अरे शांति. मीन ऑफ 6 7 x 8 y 14 इज 9. देन x. इन सब का मीन कितना है? 9 है. तो x और y में रिलेशन पूछा है. तो 6 + 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 14. टोटल कितना डेटा बना ये? 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 इक्वल टू कितना होगा? 9. तो ये 6 और 7 13, 13 और 8 13 और कितना आ गया? 21 और 14 35 प्लस x प्लस y इक्वल टू 54. तो x प्लस y इक्वल टू 54 माइनस 35. तो x प्लस y इक्वल टू कितना आएगा डिफरेंस? 19. x प्लस y इक्वल टू 19. ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट, एसरेस एंड रीजन 2 क्वेश्चन है. देखो, प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7. ठीक है. लीप ईयर के अंदर टोटल दिन कितने होते हैं? 366. कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं लीप ईयर के अंदर. ठीक है. उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है, अब इसमें 2 डेज एक्स्ट्रा है ना, तो उस 2 में कोई भी 7 दिन, टोटल चांस कितने? 7 दिन के हैं. उसमें से कोई किसी 2 में से एक संडे हो सकता है. 2/7 आएगा. क्या आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी? 2/7. इसमें कोई दिक्कत नहीं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर 53 सैटरडे 1/2. ये 1/7 है, 1/2 नहीं है. ये कितनी आएगी? नॉन लीप ईयर में 365 डे हो जाए तो 364 तो कंप्लीट वीक हो गए. 52 365 डेज का मतलब हो गया 52 वीक प्लस एक्स्ट्रा एक दिन और होता है, प्लस एक्स्ट्रा. और 360 डे में क्या होता है? 66 में
364 डे तो हो गए कंप्लीट वीक के, और प्लस दो दिन एक्स्ट्रा बच गए, 2 दिन एक्स्ट्रा। इसमें एक ही दिन एक्स्ट्रा होता तो 1/7, तो इसका मतलब रीजन क्या है, गलत है। एसरेशन क्या है, फॉल्स है। सो एसरेशन सही है और रीजन फॉल्स है, तो कौन सा सही है इसमें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी लिखना पड़ेगा इसमें। क्या लिखना पड़ेगा, सी। नेक्स्ट, फॉर 0 to 90 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऐसा होता है क्या, है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वन अदर। क्यों नहीं हो सकता है, देखो, हाँ देखो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, सुनो आराम सुनो बेटा, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो क्या होगा, ऊपर हो गया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी में। 1 इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन 1, तो ये सही हुआ कि नहीं हुआ, रेसिप्रोकल हुआ एक दूसरे के। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ही आता है। तो 0 to 90 में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है। रीजन दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उल्टा लिखा है इसने रीजन, देखो क्या होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो इसका मतलब रीजन क्या हुआ, इसका फॉल्स हुआ ना, तो इसमें भी क्या आएगा, सी। क्या आएगा, एसरेशन ट्रू, रीजन फॉल्स। क्योंकि फॉर्मूला में आप गलती करते हो ना, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा करते हो ना, दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता फॉर्मूला। तो इट इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यू पोर्शन, इट इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यू पोर्शन। सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्चुअल अप्रोच क्वेश्चन, जिसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, वो वाला हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से देखते जाइएगा, बीच बीच में अपनी कॉपी बंद कर लो, बाद में देख लेना जो भी होता है, ठीक है। शांति से देखते जाओ, समझ लो अच्छे चीज़ों को क्या होता है। इसमें आपको जस्ट क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो 5 कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, कितनी होती है, √2, तो √2 का स्क्वायर, -3 साइन की 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, और cos 0 भी 1 होता है, तो 5 × 1, तो 5 × 2 -3 + 5, तो कितना आ जाएगा, 10 + 15 - 3 12 आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए, 12 आंसर आना चाहिए, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इजी है कि नहीं है बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, अल्फा और बीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, अल्फा = 6, बीटा = -3। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या आएगा, x² -6 - 3 ऑफ x प्लस 6 इंटू -3, तो आंसर कितना आएगा, x² - 3x -18 = 0, या 0 लगाओ मत लगाओ, ऐसे छोड़ सकते हो। दिस विल योर पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा, इसका पहला पार्ट। दूसरा पूछा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये तो सीधा है, x² -4 + 4x -12 = 0, तो 2 ऐसे फैक्टर कर लो, x² प्लस का 6x -2x -12 = 0। तो पहले में कॉमन क्या लेंगे, x, तो x + 6 -2 x + 6 = 0, तो x - 2 x + 6 = 0, तो इसका फैक्टर अल्फा = क्या ले सकते हो, 2, और बीटा = -6, 2 and -6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, इजीली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा, पक्का। सिंपल है कि नहीं है, पेपर बड़े सिंपल है,
कल आप बोल रहे थे सर बहुत हार्ड है, पता नहीं क्या, ऐसा थोड़ी है, हार्ड नहीं है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए बेटा बताए। अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू क्या होता है बेटा, जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास बी की जगह क्या है, माइनस का 10, 10 का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह 5 है, 5x है ना, और इंटू के इक्वल टू जीरो। तो 100 इक्वल टू कितना हो गया 20 के, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा उनके पास 5, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर ये करते 2 नंबर मिल जाता। अगला पूछा है वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 7 टाइम ऑफ अदर। एक रूट जो है दूसरे का 7 टाइम है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। तो अब एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 7 अल्फा होगा, क्या होगा 7 अल्फा होगा। ये 2 रूट इसके हैं। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको पता है, एक चीज सुनिए, यहां पे देखो बेटा कि जो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा आता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहां से ध्यान से देखना बेटा, चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अल्फा प्लस 7 अल्फा, अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस का 8 अपॉन 3, माइनस माइनस का 8 अपॉन 3 बी बाई है ना। तो 8 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 8 बाई 3, अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 1 बाई 3। दूसरा रूट क्या आ जाएगा उनके पास 7 बाई 3, बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 अल्फा है ना 7 बाई 3। अब हमें पता है कि आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए होता है। ध्यान समझो चीजों को, बड़ी आसान है। तो अल्फा की जगह हम लोग देखेंगे अल्फा 1/3 है, 1/3 इंटू 7/3 इक्वल टू सी कितना है माइनस का 2 के प्लस 1/3, यही होगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो 7 इक्वल टू क्या बचा माइनस का 6 के प्लस का 3, इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 6 के। तो 4 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 6 के की वैल्यू क्या आएगी 4 बाई माइनस का 6 माइनस 2 बाई 3, के की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2 बाई 3। समझ में आ गई बात सबको, कैसे करना है क्वेश्चन को वापस समझ लीजिए। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पोल आपके रूट्स दे रखे हैं, दोनों जीरो एक दूसरे से, एक का जो रूट है दूसरा उसका 7 टाइम्स है। तो 7 टाइम के लिए एक अल्फा, दूसरा क्या होगा 7 अल्फा। हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा का कंडीशन से हम लोग निकाल ली, अल्फा की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली अल्फा की। फिर इसका यूज करके अल्फा इंटू बीटा का यूज करके हमने क्या कर दिया के की वैल्यू निकाल दी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। अब हमारे पास देखिए क्या है ये, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A box contains 20 discs which are numbered from 1 to 20. If one disc drawn at random from the box, then find the probability that the drawn disc is 2-digit number and number less than 10. तो नंबर कहां से कहां लिखे हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 2 डिजिट नंबर कितने टोटल इवेंट कितने हो गए पास टोटल 20। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कितना है 11, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 11/20। दूसरा पार्ट क्या है इसका
नंबर लेस देन 10 कितना 9 है, तो लेस देन 10 वो है 9, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 9/20। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं। 10 नहीं लेंगे बेटा, लेस देन 10 का मतलब 10 से कम, लेस देन और इक्वल टू 10 तो 10 लेते हैं, लेस देन 10 में 10 कंक्लूड नहीं हो सकता, 10 को बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर 25, फाइंड द रेडियस। देखो यार हैं, ये दो दो नंबर आपको फॉरवर्ड में बांट रहा है। देखो ये एक सर्कल है, इसके ऊपर बाहर से टेंजेंट बना दिए, ठीक है, यहां से ऐसा है, ये आपको फाइंड करनी है, और जो लेंथ दे रखे 24, ये डिस्टेंस दे रखे 25, तो ये पाइथागोरस लगा सकते हैं सीधा, ओ ए बी, तो क्या होगा ओ ए ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, एग्जाम में बता सकते हो डायग्राम बना के इजीली। तो 625 माइनस 576 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49। देखो कैलकुलेशन बड़ी आसान आती है, अगर आपने अकल लगाई सही से तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, अभी तक कोई भी हार्ड आया हो तो कैलकुलेशन बेस, कभी भी बोर्ड में हार्ड कैलकुलेशन नहीं पूछता है, कभी भी बोर्ड में हार्ड कैलकुलेशन नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेक्शन सी आ गया 3 मार्क्स वाला, कौन सा आ गया 3 आ गया। अब देखो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वरुण एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। रेसिप्रोकल है एज का, उसका सम, रेसिप्रोकल का सम जो कर रखा है 1/3 आ रहा है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, उसकी प्रेजेंट आयु क्या है, वर्तमान में कितना बूढ़ा है अमित। अमित देख नाम वरुण लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लक्षण तो है 40 साल वाले, बूढ़ा अभी 12-13 साल 15 साल का है, ठीक है। हरकतें हैं पूरी, क्योंकि डोडा अमल धंधे में ऐसा ही सब होता है ना। ये बेटा सब जा रहा, देख ले, सुनेंगे तेरे घर पे। अब सुन ले, यहां पे क्या होगा, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या है एक्स मान ले। 3 ईयर अगो एज क्या होगी 3 ईयर अगो एज एक्स प्लस 3। बहुत अच्छा बेटा, होशियार तू ही है ना। 5 ईयर फ्रॉम नाउ कितनी होगी x-5। अरे हाँ, अगो की एज निकालने के लिए पहले प्लस करेगा, है ना। 3 साल पहले इसकी एज 18 साल थी, 3 साल बाद इसकी एज 15 साल हो जाएगी, है ना। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे बच्चे चाहिए। अब इनके रेसिप्रोकल का सम जो है 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3। क्या लेंगे बेटा दोनों का एलसीएम, एलसीएम नहीं लेना तो मल्टीप्लाई में लिख दो, क्या लिख दो, ऐसा लिख सकते हो, इसको इधर लिख दो क्रॉस में, कोई दिक्कत है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर वाला क्या होगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6x प्लस 6 इक्वल टू x² माइनस प्लस 2x माइनस 15, इस पूरे को इधर भेज दो, x² प्लस 2x, इसको इधर भेज देंगे माइनस का 6x माइनस 15 माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 21 के 2 फैक्टर कर दिए, जिसका सम करने पे क्या आना चाहिए -4 आ रहा है, सॉरी माइनस का 7 ले लो प्लस का 3 ले लो, आ गया -4, तो x माइनस 7, x कॉमन ले लेंगे पूरे में से, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, और x वैल्यू कितनी आएगी -3, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x कितना होगा, एज नेगेटिव में होगी नहीं,
एज कितनी होगी? 7 होगी। प्रेजेंट एज कितनी है? 7। 3 साल पहले वो कितना था? 13 साल का अमित के अनुसार, पर एक्चुअल में कितना था? 4 का। 5 साल बाद कितना होगा अमित के अनुसार? 2 साल का, पर एक्चुअल में कितना होगा 5 साल बाद? 12 साल का। ठीक है, क्योंकि ये अलग कैलकुलेशन करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, ए सर्वे, ए सर्वे conducted on 20 households in a locality by a group of students result in the following frequency table for the number of family member in the households. Number of family member in household सर्वे किया गया, फैमिली में साइज कितनी है और फैमिली मेंबर्स के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि फैमिली की साइज 1 से 3 लोगों की जो साइज है वो 7 फैमिली जैसी थी, 3 से 5 वाली 8 फैमिली थी, 5 से 7 वाली 2 फैमिली थी, 7 से 9 वाली भी 2 फैमिली थी, और 9 से 11 वाली केवल 1 फैमिली थी। अब पूछा मीडियन क्या होगा, क्या निकालना है? मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ये फ्रीक्वेंसी जो है इसके अकॉर्डिंग हमें CF निकालना पड़ेगा। तो 7, 15, 17, 20, टोटल 20 हो गया। सबसे पहले ये हमारे पास क्या आ गया? n आ गया। क्या आ गया? n। तो n/2 कितना होगा? n/2 आपका हो गया 10। ठीक है, तो मीडियन क्लास पहले ढूंढनी पड़ेगी। मीडियन क्लास, कौन सी मीडियन क्लास होगी बताओ? मीडियन क्लास क्या होगी? सबसे पहले 10 के जस्ट बाद की CF क्या है? 15। तो ये छोटी सी यहीं पास में आ गई मीडियन क्लास। क्या आ गई? 3 to 5। अब इसमें L क्या होगा? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 3। C क्या होगा? मीडियन क्लास के पहले की CF कितनी है? 7। और ये क्या चाहिए इसमें? हाइट, मीडियन क्लास की हाइट कितनी है? 2। F चाहिएगा। F कितनी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 8। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाओ। मीडियन इक्वल टू क्या होगा? N/L प्लस N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो क्या होगा? L कितना बेटा? 3, N/2 10, माइनस C कितना है? 7 अपॉन F कितना है? 8 इंटू H कितनी है? 2। ये हो गया 4। तो कितना आया? 3/4 आया यहाँ पे, प्लस 3/4। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 3.75। मीडियन क्या आया? 3.75 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3.75। समझ में आ गई बात? ये आंसर जिसका आया वो सही है, अदरवाइज गलत है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ढंग से समझिएगा। E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. So ABE similar to CFB। ध्यान से देखो, ये बुक का क्वेश्चन है, आपके मैथ्स की बुक का ही क्वेश्चन है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD। अब यहां ध्यान देना कि AD इज प्रोड्यूस, E इज पॉइंट ऑन साइड AD। AD प्रोड्यूस, AD को आगे बढ़ाओ आप, AD को आगे बढ़ाना है। पॉइंट E, पॉइंट E। इसके बाद क्या बोला इसने? इंटरसेक्ट CD एट F। इंटरसेक्ट CD एट F। ये कहां से इंटरसेक्ट करेगी इसमें? है डी को, बी को ज्वाइन करना है, कैसे बोला क्या? एंड BE, हाँ सॉरी, BE इसको यहां पे ज्वाइन किया, इसको यहां पे ज्वाइन किया। तो ये जो कट कर रही है पॉइंट कौन सा है? F। अब तुम्हें प्रूव क्या करना है? ABE सिमिलर टू CFB ये वाला कैसे प्रूव करोगे? इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB सिंपल है। एंगल A इक्वल टू एंगल C क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या है? एंगल
ए ई एफ इक्वल टू एंगल एफ बी सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जेड फॉर्म बनेगी नहीं बनी? ये कौन सी फॉर्म बनी? जेड फॉर्म। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, ठीक है। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या होगा? ट्राइंगल ए बी सी ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। ये जिसने किया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। यही आपको रूल लगेगा और इसमें कोई रूल नहीं लगा अलग से, ठीक है। बाकी कोई भी एंगल आप इक्वल दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते हो। दिखा सकते हो? बताओ कैसे दिखाओगे? हैं? एंगल कौन सा? बी कॉमन नहीं है बेटा, एंगल बी कॉमन किसी हाल में नहीं है, क्योंकि ये इधर रहा, ये इसका इधर का मामला है और ये इसका इधर का मामला। कॉमन कहाँ है बता मुझे? कॉमन लिखा है तो गलत लिखा है, 0 नंबर मिलेगा वहां। कॉमन नहीं है। कॉमन कहाँ दिख रहा है? कॉमन मतलब एक साथ बनना चाहिए ना, एक साथ तो नहीं बन रहा है, तो कॉमन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। जिसने यही किया उसी को नंबर मिलेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी गलत किया आपने अगर किया है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, in the given figure CM and RN respectively the median of the triangle ABC and PQR. If triangle ABC parallel similar to PQR then AMC parallel। हाँ ये तो सिंपल हो जाएगा, सीधा करा रखा। ये भी बुक का क्वेश्चन है, ये भी किसका क्वेश्चन है? बुक का ही क्वेश्चन है, बुक वाला ही है, सेम का सेम। वो अलग था एक। अब यहां देखो इसने क्या बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी, दोनों थे इसमें क्वेश्चन, ठीक है, और दोनों मैंने कराए हैं। ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू आर गिवन है। तो हमें पता है कि इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो विल बी सेम। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। ये है सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ है ना, इनमें साइड तो ये लेनी पड़ेगी। अब ये अगर सिमिलर ट्राइंगल है ये दोनों, तो अगर हम लोग देखें कि हाफ ऑफ ए बी, दोनों में इसको हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हमारे पास? हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए एम, और हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू पी एन। क्या होगा? पी एन। ये होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। उससे क्या फायदा होगा? ये हमारे पास ए एम अपॉन पी एन आ जाएगा इन दोनों साइड्स के इक्वल। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा बताओ? यहां पे देखो इन ट्राइंगल ए सी एम एंड ट्राइंगल पी एन आर, पी एन आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी अपॉन, ये ए एम सी है ना, ए एम ए सी एम पी एन आर, ये है ना, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू क्या होगा? ए एम अपॉन पी एन। ये तो गिवन है, ये तो क्या है? गिवन। और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये भी गिवन है, गिवन है कि नहीं है? बाई एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी ट्राइंगल ए, ये ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। हैंस प्रूफ। जिसने ये प्रॉपर मेथड लगाया है उसी का सही है, अदरवाइज गलत माना जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान देना इस चीज का भी। दोनों करा दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करती है। कितने पार्ट में डिवाइड करती है बेटा? 3 पार्ट में। ये ए, ये बी, ये 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट सी और एक पॉइंट है डी। ये 3 सेक्शन बन गए अलग अलग, 3 सेक्शन बन गए। जब आपको सी पॉइंट का ए के कोऑर्डिनेट लो 5,3 और डी के कोऑर्डिनेट लो 4,5। अगर सी कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है? सी। तो इधर वाला पार्ट कितने का हो गया? 2 का। इधर वाला पार्ट कितने का हो गया? 1 का। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे,
कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या होगा? c के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? x इक्वल टू क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहां पे देखो, जब ये वाला अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं क्या है? m है, ये क्या है? n है। तो अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू m की जगह क्या लिखेंगे? 1, x2 ये वाला लेना पड़ेगा, मतलब 4, क्या लोगे? प्लस n कितना है? 2, x1 कितना है? 5, कितना है? अपॉन m प्लस n कितना होगा बेटा? है 2 प्लस 1, तो ऊपर कितना हो गया? 4 प्लस कितना हो ये? 10, 14। x इक्वल टू कितना आ गया? 14 अपॉन 3। इसी तरह c के लिए y निकालें, तो y कैसे निकालेंगे? my2 प्लस ny1 अपॉन y इक्वल टू m तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो 5 प्लस 6 कितना? 11, ये आ गया 11/3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना आ गया? इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपका 14/3, 11/3। अब दूसरा जो कोऑर्डिनेट निकालना है उसके लिए आप क्या ले सकते हो? इधर वाली साइड कितनी हो जाएगी आपकी? 2, ट्राइसेक्शन है ना, ये 2 और ये क्या ले लो? 1। अगर ये डी पॉइंट निकालना है, डी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स के लिए क्या लगाएंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x m यहाँ पे कितना लेंगे आप लोग? ये वाला ले लीजिए आप लोग, क्या m, ये क्या ले लीजिए? n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब m1 लेंगे यहाँ पे, तो x2 ये वाला हो जाएगा, इधर वाला कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? प्लस nx1, तो 2 इंटू 4 अपॉन 3, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 5 और 8 13 अपॉन 3, कितना आया? 13 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो वापस देखो, m अगर कौन सा ले रहे हो? 1 ले रहे हैं, तो y2 इधर बड़ा होगा, कौन सा होगा? 3 प्लस 2, और ये y1 कौन सा होगा? ये वाला 5 अपॉन 3, तो y इक्वल टू कितना? ये भी 13 अपॉन, ये दोनों आगे कितने? 13/3, 13/3। आया किसी का आंसर? 13/3 ये क्या है तेरा? तो फिर दूसरा कौन निकालेगा बता? प्राइस सेक्शन वाला दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, हाफ मार्क्स मिलेंगे, इसमें आधा निकाला है तो। अगला क्वेश्चन, 3 - 2 √5 इज रेशनल नंबर। √5 रेशनल है, तो लेट 3 - 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। इज ए, पहले ये मानेंगे, सॉल्यूशन करने का तरीका सोचो, ऐसे मानेंगे हम लोग, ठीक है। इसका मतलब 3 - 2 √5 इक्वल टू p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -2 √5 इक्वल टू क्या होगा? p अपॉन क्यू -3। तो -2 √5 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा? कितना आएगा एलसीएम? क्यू आएगा, p -3q। तो हमारे पास क्या आएगा? √5 इक्वल टू p -3q अपॉन -2q। अब देखो ये वाला नंबर क्या है? रेशनल है, बट ये वाला क्या है? इरेशनल है। बट √5 इज क्या है? इरेशनल, बट √5 इज इरेशनल, हैंस बोथ स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट। ये लिखनी जरूरी लाइन, ठीक है। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट, हैंस 3 - 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। इज ए इरेशनल नंबर, क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ गई बात? कोई बात नहीं, चलेगा। -2 पूरे के साथ ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, ये तो पूरा ब्रैकेट में रख के फिर -2 लाओ। ब्रैकेट में रखा है, सीधा 2 के साथ -2 नहीं लिख सकती, क्यू के साथ सीधा -2 लिखेगी तो गलत है, ठीक है। क्योंकि पहले एलसीएम लेगा फिर तो पूरे के साथ आएगी डिवाइड में, ऐसे थोड़ी आ सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट, कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, प्रूव करना है। तो सबसे पहले एलएचएस ले ले बेटा। एलएचएस क्या होगा? कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए। तो कोट, अब ये वाला सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? नॉर्मली साइन को उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे कोट के लिए? कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में क्या होगा? कोस ए प्लस साइन ए प्लस कोस ए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन ए। अपॉन में क्या आएगा यहाँ बताओ? कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो क्या आ जाएगा? अपॉन में साइन ए है, ये साइन ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर से कोस ए कॉमन ले लो पूरे में से। कोस ए कॉमन ले क्या बचा? 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए कॉमन ले तो क्या बचा? 1 प्लस साइन ए। कोस से कोस ए कट हो गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। इसको यहीं पे छोड़ दो, फिर कहाँ सॉल्व कर दो? आरएचएस को सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख दो आप लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को। आइडेंटिटी लगाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये होगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक से क्या हो गया? ये कैंसिल। तो क्या बचा? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बचेगा। तो हमारे पास वही क्या है? इक्वल टू एलएचएस। हेंस प्रूव। एक तो ये प्रूव हो गया आपका। दूसरा पार्ट क्या पूछा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये नए स्लाइड में कर देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन बताना क्या था? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो पहले क्या लेंगे? एलएचएस ले लेंगे पहले। क्या 2 कॉस थीटा क्या बोला? तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या होगा यहां से बताओ? सेक को कन्वर्ट कर दे तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर क्या बन गया अपने पास? एलसीएम ले लेंगे, इसका कॉस थीटा आएगा। ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ए कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आ गया आंसर? कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? हेंस हो गया। अब बात आते हैं सेक्शन बी 5 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले सारे हो गए अपने। किसके हो गए? 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हो गए। सेक्शन डी 5 मार्क्स का जो सेक्शन है आपका, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। क्या करना है? विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसा समझिए। एक ब्रिज बना हुआ है, इस टाइप का ब्रिज है जो रिवर के ऊपर है। रिवर के ऊपर है, तो रिवर का एंड यहां मान लीजिए।
ब्रिज के ऊपर आप खड़े हो ना, ब्रिज के ऊपर, ब्रिज तो ऊपर होगा हाइट से, तो इसका अगर सिंपल चीज में देखना चाहिए तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, यहाँ पे ये रिवर की विड्थ है और इसके बीच में यहाँ ब्रिज बना हुआ है। एक साइड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। दूसरी साइड का कितना बन रहा है? 45 डिग्री। हाइट कितनी दे रखी ब्रिज की? 3 मीटर। कितनी दे रखी है? आपको क्या पूछा? ये वाला पार्ट पूछा है, तो सीधा सा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये वाला x मान लो, ये वाला क्या मान लो? y। तो विड्थ इक्वल टू क्या होगी? विड्थ इक्वल टू x प्लस वाई। तो हमारे पास tan 30 इक्वल टू क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन x। tan 30 वाली 1/√3। ये कितना आ जाएगा? 3/x। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा 3√3। और यहाँ पे tan 45 इक्वल टू tan 45 वैल्यू कितनी होगी बताओ? ये 3/y। तो y की वैल्यू तो कितनी आएगी? 3। इसकी वैल्यू देख लो तो √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73। सोल्व कर लो, 9, 1 और 5.19। तो विड्थ कितनी आ जाएगी उनके पास? विड्थ इक्वल टू 5.19 प्लस 3, तो 8.19 मीटर। आ गई सबकी? 8.19 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पार्ट देख लेते इसका। दूसरा पार्ट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्या दिक्कत इसमें? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, सीधी सी बात है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर बना हुआ है। बिल्डिंग के ऊपर क्या बना हुआ है? ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर ये तेरा टावर है, ठीक है, मोबाइल वाला। अब यहां से तुम देखते हो ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, एक तो यहां से देखेगा और एक यहां से देखेगा। ये कितना है और ये कितना है? अब इसने पूछा ये हाइट कितनी है, मान लेते हैं y है, कितनी है? ये मान लेते हैं हमारे पास कितने, यहां से यहां तक x है, 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर। ये वाला कितना होगा यहां से यहां तक का? x मान लें इसको एक बार के लिए। क्या मान लें? x। तो सबसे पहले लेंगे तो क्या लेंगे? tan 45। tan 45 इक्वल टू कितना होगा? 20/x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 20। फिर अपन tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 इक्वल टू कितना आएगा? परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 20 प्लस वाई अपॉन बेस कितना है? x। तो tan 60 कितना था? √3। 20 प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो यहां से y निकल जाएगा सीधा। y इक्वल टू कितना आएगा? 20√3 माइनस 20। तो आंसर कितना आएगा? y इक्वल टू 20√3 माइनस 1। y इक्वल टू 20 इंटू 1.73 माइनस 1। तो y इक्वल टू 20 माइनस 20 इंटू 0.73। आंसर कितना आएगा y का? कितना आएगा? 064, 14.60 मीटर। 14.60 मीटर इसकी आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब आगे तो आप सीधा वैल्यू डालने जाना है, बस वैल्यू डालोगे तो सही होता जाएगा अपना आप ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The first term of AP is 22, last term is -6 and the sum of the all term is 64. Find the number of terms. सीधा सा फॉर्मूला बता आपको, SN इक्वल टू कितना बेटा? n/2 A प्लस L। तो SN कितना दे रखा है? 64। n/2 A कितना है? 22। L कितना है? तो 64 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू ये कितना हो गया? 16। तो n इक्वल टू कितना आएगा? 64 इंटू 2 अपॉन 16। 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। n इक्वल टू 4 इंटू 2 8। सीधा आंसर देखो, फॉर्मूला वैल्यू डालो, आंसर पाओ। फिर क्या पूछा इसने? आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो दिक्कत क्या है? ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा ना, लास्ट टर्म दे रखे ना। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? माइनस का 6। ए कितना है? 22। एन कितना हो गया? 8। तो 7 इंटू डी। डी इक्वल टू 14 माइनस का, नहीं माइनस का 28 अपॉन 7। तो डी की वैल्यू कितना है? -4।
5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। ठीक है, गलत किया। अगला क्वेश्चन, एन आइसक्रीम दिख रही है आपको, आइसक्रीम कौन इज filled cone having with radius 5 centimeter and height 10 centimeter is shown in the figure. Find the volume of the ice cream in 7 such cone. वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये पूरी कितनी है 10 है, तो इसकी हाइट कितनी होगी 5 होगी, कितनी होगी 5। तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉन, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, वन आइसक्रीम, वन आइसक्रीम की वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 2/3 पाई को पाई रहने दो बेटा एक बार, इनटू आर क्यूब कितना है 5 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर 5 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये 5 क्यूब बना। तो इसमें से 5 क्यूब पूरा मैच कॉमन ले लो, 5 क्यूब कॉमन लिया तो क्या आया 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, पाई हो गया, कितना हो गया पाई। तो पाई इंटू 5 का क्यूब आ गया एक कॉन का वॉल्यूम, एक का कितना आ गया पाई इंटू 5 का क्यूब। सच है 7 कॉन है, तो 7 कॉन, 7 कॉन के लिए कैसे निकालोगे, 7 इंटू 1 का कॉन, 1 कॉन का वॉल्यूम होगा नहीं होगा, तो क्या होगा 7 इंटू 22 अपॉन लास्ट में वैल्यू डाल दो इंटू 125, 7 से 7 गया तो 25 जा 110, 22 2 जा 44 और 11 55 और 22 और 5 27, 2750 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब लगाओ तभी पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे आंसर सबका सही आया, चलो 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। पहला क्वेश्चन तो क्या है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, दैट इज बीपीटी, यू हैव टू सॉल्व इटसेल्फ। ये बीपीटी है आपका। ठीक है, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, ध्यान से देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर अपॉन पी आर। आपको प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। अब सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पी क्यू एस ये वाला और टी क्यू आर बड़ा वाला ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ऐसा करना नहीं करना है, तो कैसे कर सकते हैं बताओ, एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल को प्रूव करना है, कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले क्या होगा, अब देखिए बेटा, पी क्यू एस और टी क्यू आर प्रूव करना है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें दे रखा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये वाला। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल देखते हैं, ध्यान सुनिए अब चीजें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल विल बी इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आई बात। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू पी इक्वल टू पी आर, सो क्यू आर अपॉन क्यू एस
इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन क्यू पी। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर क्या होगा कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी बाई एक्स। और दूसरी चीज क्या होगा, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमन क्या है, कॉमन। और वैसे भी आप लगा सकते हो बाई एक्सटेंडेड बीपीटी, बाई एक्सटेंडेड बीपीटी क्या होगा, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू। अब इसमें आपको 5 नंबर केवल किसके थे, ये इक्वल एंगल दिखा के इस साइड को इक्वल दिखाना था, इसको और इसको, इसके केवल 5 नंबर थे। बीपीटी करे तो बहुत सी बात है, बीपीटी नहीं करते तो भी ये देखो एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। कितने स्टेप का है, एक स्टेप में 5 नंबर मिल रहे थे, सोचिए आप। 36 क्वेश्चन कैश बेस आ गया आपका। वैसे इसमें कैश बेस में कुछ खास चीजें होती नहीं है, सिंपल जैसा क्वेश्चन होता है वैसा ही क्वेश्चन होता है, नाम कैश स्टडी दे दिया केवल। फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द अर्थ डे वीक, school badges were given to the volunteer. Organized purchased the badge from the NGO who made the badge from the circle inscribed in a square of side 8 centimeter. 8 centimeter का था, उसके अंदर बना दिया एक। O is the center of the circle, AOB equal to 90 degree. That's okay, good. AOB कितना है, 90 degree. Based on the above data, answer the following question. What is the area of the square? तो क्या मतलब है area of square का इसके अंदर, 8 into 8, 8 into 64 centimeter square. What is the length of the diagonal of AC of square ABCD? 8 root 2. तो क्या होगा, square of diagonal that is 8 square plus 8 square that is 64 plus 64, 64 into 2 that is 8 root 2, 8 root 2 centimeter. Find the area of the OPQR, OPQRO, वापस से आर, हाँ ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना आपको, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करोगे, ये वाला एरिया। थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री। रेडियस कितनी होगी बताओ, यहां से यहां तक ये रेडियस ही है, 8 ही होगी इसकी रेडियस, सॉरी साइड 8 है ना, तो रेडियस 4 हो जाएगी। सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर। सॉल्व आगे कर लेना, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी वेज एरिया ऑफ द सर्कल इज एक्सक्लूडेड। सर्कल का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया कर दो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर कर लोगे। ये इसका आंसर थे। सिंपल थे कि नहीं थे बताओ। केस स्टडी बहुत सिंपल होती है, केस स्टडी बहुत ज्यादा ही सिंपल होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Lokesh, a production manager in the Mumbai, hire a taxi every day to go his office. A taxi charge in Mumbai consists of a fixed charge together within the charge for the distance covered. His office distance for 10 km from the home, for a distance 10 km of his office, Lokesh paid 105. While coming back, he took another route and he covered distance of 15 km and charge paid by him is 155. तो सीधी सी बात है, फिक्स्ड चार्ज मान लो x है और पर किलोमीटर चार्ज कितना मान लेंगे y, तो x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 105, और x प्लस 15y इक्वल टू कितना है 155। माइनस कर दो तो कितना आएगा 5y इक्वल टू 50, y कितना आ जाएगा 10 रुपये पर किलोमीटर है, ये 10 आ गया तो x कितना हो जाएगा इसका 5, x कितना आ जाएगा 5। तो पूछा क्या है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, तो 5 रुपीज 5। व्हाट आर द चार्ज पर किलोमीटर, रुपीज 10। इफ फिक्स्ड चार्ज इज 20 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज 10, देन हाउ मच लोकेश हैव टू पे टू ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 20 प्लस 100 120, ठीक है। If find the total charge paid by Lokesh for the traveling 10 km from the home to office and 25 km from office to home, fixed charge and charge per kilometer as in the first, जो फर्स्ट में है तो कितना होगा, फिक्स चार्ज तो 5 है प्लस 10 और ये कितना जा रहा है 25, तो 35 इंटू पर किलोमीटर चार्ज कितना 10, तो कर दो 355। आगे आंसर है ना, सिंपल। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है।
देख के डर जाते हो ना। अगला क्वेश्चन, पीपल ऑफ ए सर्कुलर विलेज, ये क्या है, धर्मकोट, want to consist a road near to it. The road cannot pass through the village, but the people want to road the shortest distance from the center of the village. Suppose the road start from the A, यहां से start होती है A, which is outside the circular village as shown in the figure, and touch the boundary of the circular village at point B. ठीक है, AB equal to 20 meter. Also distance of the point A from the O, that is 25 meter based on the above data. B is the midpoint of AC, find the AC. Find AC. 20 और 20 कितना हो गया 40. ठीक है, find the shortest distance of the road from the center of the village 25. नहीं सॉरी, ये वाले फाइंड, रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस कितनी होगी इसकी 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो कितना होगा 625 माइनस 400 225, 225 का स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। कितनी होगी शॉर्टर डिस्टेंस 15 मीटर, इसका आंसर होगा 15 मीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द विलेज, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू 15 तो 30 पाई, कितना होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द विलेज, पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पाई कितना है, पाई आर मतलब 225 का हो गया 225 पाई। दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर। आई थिंक यू ऑल एंजॉय दिस पेपर लॉट। सबको मजा आया पेपर देख के। तो बहुत ही आसान सा एक ही पेपर आता है आपके एग्जाम के अंदर, जिसको आपको करने में हालतें खराब हो जाती है। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आराम से आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। कितना कर सकते हो 80 आउट ऑफ 80 कर सकते हो, पर नहीं करते हो तो ये आपका वीकनेस है। और देखिए पेपर सोल्व करने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा और 10 मिनट। और इसमें मैंने और वाले क्वेश्चन भी कराए, कितने कराए, और वाले क्वेश्चन भी करवाए। अगर वो छोड़ दो तो एक आपको कितना टाइम मिलता बेटा 3 घंटे, और हमने कितने में किया 1 घंटे में। सोचिए कि किस लेवल का पेपर आता है, उसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है, हैं? एक्स्ट्रा लेवल का टाइम मिलता है आपको। ये आगे जाओगे ना, जब 11वीं में पढ़ना शुरू करोगे 12वीं में, तो बेटा टाइम नहीं मिलता है। 3 घंटे का पेपर यहाँ सोल्व करने में 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं, और 10वीं में 3 घंटे का पेपर सोल्व करने में मेरे को कितना लगा। अभी भी नहीं पढ़ते हो तो बेटा फिर आप थोड़ा सोच लीजिए अपने आप में क्या करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट सेशन फॉर द नेक्स्ट पेपर।